اینڈ دین یو کین کم بیک ان پاکستان تحریک انصاف. یہ عمران خان کی شرط ہے. عمران خان کی اس لائن کا ہم کوئی غلام ہے جو آپ کہیں وہ کر لیں کا ایک بڑا اچھا جو ہے نا اگزامپل مودی نے دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا نام تاریخ میں جو ہے کوڑا دان میں جائے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ورسز عمران ریاض خان. السلام علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آج تاحیات نااہلی سے متعلق جو سماعت ہوئی ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو لیڈ کیا. 7 رکنی بینچ تھا. اس کے بارے میں اپڈیٹس تو ہیں لیکن جو میجر پوائنٹ اس کے اندر سے آیا ہے وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ورسز عمران ریاض خان. اس کے اوپر بات کریں گے. ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف ہے اس کی طرف سے 70 کروڑ کی جو قسط ہے اس کی منظوری کے امکانات ہیں پاکستان کے لیے، اور موسٹ پروبیبلی وہ ہو جائے گی منظور. اس سے پہلے بھی بہت ساری آپ کو قسطیں مل چکی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، اور عوام کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ 15 روپے پیٹرول سستا ہوگا اور ایک ہفتے بعد 14 روپے اس کو مہنگا کر دیں گے اور عوام خوش ہو جائے گی کہ چلو یار پیٹرول تو سستا ہوا ہے ایٹ لیسٹ. یہ حالات ہیں. یہی بات ورلڈ بینک نے بھی کہی کہ کس طریقے سے یہاں پہ اکانومی یا جو بھی طرح سے فائدے یہاں پر آتے ہیں ملک کے اندر وہ اشرافیہ تک پہنچتی ہے چیز، صرف اس کا کوئی بھی اثر پاکستان کی جو عوام ہے یا جو ایک غریب طبقہ ہے اس تک کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ساتھ ساتھ جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار کاکڑ صاحب، انہوں نے چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی ہے، جا کے عیادت کی ہے اور ملکی امور پہ ڈسکشن ہوئی ہے. سیکیورٹی کے لحاظ سیکیورٹی تھریٹس یا سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں یا الیکشنز ہیں، یہ ساری چیز پہلے ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے انوار کاکڑ صاحب سے بہت ریزرویشنز ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی کلیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے صاف شفاف طریقے سے. یہ بائسڈ گورنمنٹ ہے، یہ بائسڈ بندہ ہے تو ان کو اتاریں. باقی وہ کسر انہوں نے کاکڑ صاحب نے چودھری شجاعت سے مل کے پوری کر دی اور ہوا دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان ریزرویشنز کو، کیونکہ اوبویسلی چودھری شجاعت نون کی سائیڈ کے بندے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا نہیں ہے کوئی بھی رجحان یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی سافٹ کارنر وہ نہیں رکھتے عمران خان کے لیے. تو بس وہی حالات ہیں. کاکڑ صاحب نے ساتھ فردر یہ باتیں کہی ہیں آج کے عدلیہ کو لے کے. بڑے سنگین سوالات ہیں یہاں پر جو جوڈیشری کا سسٹم ہے اس کو لے کر. ٹیکس ریلیٹڈ بات کی ہے، ایجوکیشن سسٹم کو لے کے بات کی ہے ملک کے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے ایز دا نیم سجیسٹ کہ وہ صرف ایک پوزیشن ہے جس طرح پرائم منسٹر کی ایک بہت امپورٹنٹ، وہ ویکنٹ نہ رہے اسپیس، اس کو فل کرنے کے لیے ایک بندہ بٹھا دیتے ہیں آپ. دیٹ پرسن از دیر جسٹ ٹو واچ بیسیکلی. کوئی وہ پالیسی نہیں بنا سکتا، کوئی اکانومی کوئی چیز، ہر چیز ملک کی رکی ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور ان کو آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے. ان کی بات کی جس طرح کے ان کے بیانات وغیرہ کی کوئی ایسا پھر امپورٹنس نہیں بنتی. پیپل آر ویٹنگ کہ کوئی الیکٹڈ بندہ بٹھایا جائے، اور الیکٹڈ بندہ بٹھانے کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. الیکشنز کروانے کا موڈ نہیں ہے. پھر الیکشنز کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے اس کی پاسبلٹی کو جو 8 فروری کی ہے. آج جو عدالت قاضی فائز عیسیٰ اور میں جو بات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کو جو ہے نا ڈیلے اور اس کی طرف چیزوں کو لے کے جانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر سے کیا کانسٹنٹلی چل رہی ہیں، یہ کبھی رکی ہی نہیں تھی میرا خیال ہے. فردر جو اس ہیئرنگ میں جو آج ہوئی ہے تاحیات نااہلی سے متعلق، اس کو 7 رکنی بینچ اس کے لیے تشکیل دیا گیا تھا جس کو قاضی فائز عیسیٰ لیڈ کر رہے تھے. اور اس بینچ کے اندر جو موجود تھے وہ تھے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی. ان لوگوں نے ہیئرنگ کی ہے کیس کی. اب اس میں ویسے تو جو بھی باتیں ہوئی ہیں کہ ایک نارمل جو بات ہوتی ہے، جرم ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، اس کے لیے تاحیات نااہلی جو ہے وہ ریزنیبل نہیں ہے. یہ اس وقت سپریم کورٹ کا موقف ہے اس بات کو لے کر کہ جھوٹ بولیں گے تو تاحیات نااہلی ہے، لیکن اگر آپ نے قتل کیا ہے یا غداری کی ہے ملک کے ساتھ تو 5 سال کی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو تھا یہ ان کا بیان تھا اس ساری چیز کو لے کے. تو ویسے تو اس ساری چیز میں یہ لگتا ہے 4 جنوری تک یہ ہیئرنگ جو بھی معطل ہوئی ہے اس کا فائنل ورڈکٹ انہوں نے دے دینا 4 جنوری کو، اس کو زیادہ لٹکانا نہیں ہے. اور اس کا جو فائنل ڈیسیجن یہی آنا ہے کہ 5 سال کے لیے اس کی مدت کو جو ہے وہ فائنل کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے. دس از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی کی آج کی ہیئرنگ کو دیکھ کے جو جسٹسز کا قاضی فائز عیسیٰ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کا اس سارے چیز کو لے کے ان کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ 5 سال کے لیے اس کو انہوں نے کر دینا ہے.
تو नवाज़ शरीफ साहब का फ़ायदा है फिर। पहले भी वैसे तो वो इसी माइंड में हैं कि इलेक्शन में लड़ूँगा, वो इतने कोई वरिड नहीं है इस चीज़ को लेके, अगर आप नोटिस करें। ही इज़ नॉट दैट एंग्शियस इस केस के बारे में, इस एलिगेशन के बारे में, बिकॉज़ आई थिंक ही नोज़ कि डिसीजन जो है वही 5 साल का ही आएगा और 5 साल मैं गुज़ार चुका हूँ, तो बस सही है। अभी बात इसके अंदर जो आई थी वो थी कि इमरान रियाज़ ख़ान का वकील की तरफ से ज़िक्र किया गया मिसिंग पर्सन्स के बारे में कि जी किस तरीके से उनको उठाया गया। तो उसके जवाब में जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने कहा कि कौन इमरान रियाज़ ख़ान? तो उस पर उन्होंने बताया कि ये एक एंकर पर्सन थे, तो ही आस्क्ड कि वो स्टिल मिसिंग हैं? तो आगे से जो वकील हैं उन्होंने कहा कि नहीं अभी मिसिंग नहीं हैं, पहले थे लेकिन व्हेन ही केम बैक तो वो बहुत ही चेंज्ड बंदा हो गए थे। उनका अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ हो गया था इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में। इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक जो है वावेला मचा है कि जी कौन इमरान रियाज़ ख़ान? एक ये बंदा जो सुप्रीम पावर है इस टाइम जुडिशरी के अंदर, वो फंडामेंटल राइट्स को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा मुल्क के, जब एक इतना नेम ऐसा नाम जो मुल्क के अंदर इतने महीनों चलता रहा कि इसको रिकवर किया जाए, ज़ुल्म हो रहा है, वो उसको ही नहीं रिकग्नाइज़ कर रहे उस नाम को। ये एक बात चली। तो लोगों की तरफ से तो चली, इमरान रियाज़ ख़ान ने भी इसके बारे में जो है अपने, वैसे तो वो व्लॉग वगैरह नहीं कर रहे आजकल, लेकिन अपने ट्विटर के ऊपर, अपनी एक्स के जो ट्विटर एक्स है, उसके ऊपर वो बहुत एक्टिव हैं। और कोई अपना, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसे बयान शुगर कोट करके पोस्ट करते हैं। उन्होंने इसके बारे में बीच में बातें की हैं कि जी एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इसका नाम तारीख़ के कूड़ादान में जाएगा। ये नहीं मेंशन किया कि वो इमरान रियाज़ ख़ान की बात कर रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का नाम तारीख़ में जो है कूड़ादान में जाएगा। फ़र्दर जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत अब बना दी गई है, उस अगर वो पहले होती तो कायदे-आज़म भी अहलियत के काबिल नहीं थे। उसके ऊपर इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि इसका मतलब है कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं वो नवाज़ शरीफ को कायदे-आज़म से भी ऊपर रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं, कि बहुत अच्छी बात है ये। साथ-साथ एक और बात जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज कही है इस हियरिंग के दौरान, वो है कि जो सादिक और अमीन का लक़ब है, ये सिवाय आप प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अलावा किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कोई उन्होंने वर्डिक्ट वगैरह नहीं दिया, ये बातों के दौरान एक जो है वो एक जो कन्वर्सेशन हुई है, मुकालमा चला है अदालत के अंदर, उसमें ये उन्होंने एक बात कही है। ये आपको पता है कि सादिक और अमीन जो है वो इमरान ख़ान का जो है नाम उनको दिया हुआ है इस वक्त मुल्क के अंदर। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक डिबेट चलती है कि कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, और उनके जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं इमरान ख़ान के लिए। खैर 4 जनवरी तक ये समाअत मुलतवी है और इसका जो मोस्ट प्रोबेबल जो डिसीजन आ रहा है वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपना टाइम पीरियड गुजार चुके हैं और इन्होंने फाइनली इलेक्शन लड़ना है, और ये 5 साल की नाअहली की जो मुद्दत है उसको मुकर्रर कर दिया जाएगा। अनलेस के इस एक दिन में जो बीच में पर है कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाए और डिसीजन को उल्टा सीधा कर दिया जाए, देन आप कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज़ ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ होता है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। खैर आज का दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा है, जिस तरह कि अब वर्डिक्ट आना है, नाअहली की मुद्दत मुकर्रर होनी है, और अभी तो वो ताहयात नाअहल हैं, नवाज़ शरीफ यही कहा जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो अपने फाइनल वर्डिक्ट में नाअहली की मुद्दत को 5 साल मुकर्रर कर देगी, और दैट विल नॉट बी गुड फॉर पीटीआई। ऑफ कोर्स अभी गौहर अली खान नवाज़ शरीफ को इसी तरह एड्रेस करते हैं कि जी हमारा मुकाबला ताहयात नाअहल फॉर्मर वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर उनकी। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है उनके लिए मसला। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर जावेद कुरैशी ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, और वो जो सिराजुल हक हैं उनकी मौजूदगी में जमात इस्लामी की में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इसी तरह से विकटें बहुत सारी गिरी हैं, और सुनने में आया था कि जो भी कारकुन या रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के गए थे, और अब वो अगर वापस आने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, तो उनके लिए जो शर्त रखी है इमरान ख़ान ने, वो ये है कि वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बताएं कि किस तरीके से उनको फ़ोर्स किया गया था या क्या उनका दिमाग में चल रहा था जब उन्होंने इसको छोड़ा है, और इस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो प्रॉपर, एंड देन यू कैन कम बैक एंड
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये इमरान खान की शर्त है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स ना कि इमरान खान एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसी एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो बहरहाल लेट्स सी कि फ्यूचर में इलेक्शंस के लिहाज से क्या मामलात बनते हैं। और थोड़ी सी अक्रॉस द बॉर्डर बात कर लेते हैं अब कि हम कोई ग़ुलाम हैं, जो हमारे इमरान खान साहब की एक लाइन है और वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है ये। पाकिस्तान में तो उसको इस्तेमाल नहीं किया ऐसे किसी ने, लेकिन जो हमारे नेबर कंट्री के जो मोदी साहब हैं ना, उन्होंने उसका अच्छा बखूबी इस्तेमाल किया है। और वो उन्होंने किया है यूएसए के साथ। इसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस में जो कशीदगी आई है, पाकिस्तान उसकी जगह पे होता तो वो ओबियसली घुटने टेक के बैठ जाता, फ़ौरन से सारी शर्तें मान लेता, इस तरह से वो चलता है। लेकिन इंडिया अपनी ही एक गलती पे जो उसने की है, उस पे जब उसको थोड़ा सा स्क्रूटनी करने की कोशिश की है, यूएसए ने थोड़ा सा उसको अकाउंटेबल करने की कोशिश की है, तो उन्होंने आगे से यही कहा है कि हम कोई ग़ुलाम हैं, कि जो आप कहें वो कर लें। और उसके बाद उन्होंने रशिया के साथ जाके जो है ना अपने रिलेशन बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं। रशियन कॉर्नर में, रशियन ब्लॉक में चला गया है इस वक्त इंडिया। और जो एक इसराइल, इंडिया, यूएसए का एक ये 3 लोगों का एक ग्रुप था बड़ा इम्पॉर्टेंट, उसमें से एक बैक ऑफ कर गया, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यूएस पॉलिसी। लेकिन आई विश कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके अंदर भी कभी ये दम होता कि आप चले सिर्फ इंडिया को ही कभी ये कह पाते कि जी हम कोई ग़ुलाम हैं, कि जो आप कहें वो कर लें। हम एक इस तरह के एक मुल्क को भी नहीं कह सकते ये लाइन। हम उससे भी डर के नाअहल हो के बिल्कुल इग्नोर करके हम चीज़ों को चलते हैं कि जैसे वो हमें चला रहा है और हम किसी काबिल नहीं हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हमारी ये जो इनकॉम्पिटेंसी है हमारे मुल्क की, इमरान खान की इस लाइन का कि हम कोई ग़ुलाम है, कि जो आप कहें वो कर लें, एक बेहतरीन ज़बरदस्त स्टेटमेंट है ये वैसे। तो उसका एक बड़ा अच्छा जो है ना एग्ज़ाम्पल इंडिया ने, मोदी ने दिया है। एंड अप्रिशिएट करनी चाहिए ये चीज़, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनकी इस चीज़ को। ही कैन बी नॉट गुड फॉर अस, लेकिन जिन लोगों को वो लीड करने का माइंडसेट रखते हैं ना मोदी साहब, वो उनके साथ बेहतरीन है, उनके साथ उनको कोई मसला नहीं है। दिस इज़ द रीज़न ना कि वो तीसरा टेन्योर सिक्योर करने जा रहे हैं। और जब आपकी लीडरशिप किसी भी फॉरेन कंट्री के सामने, रिगार्डलेस हो कोई भी, इवन अगर पाकिस्तान के साथ चाइना है और चाइना कुछ ऐसी बात करे, डिमांड करे जो आप नहीं पसंद कर रहे, जो आपकी पॉलिसी के लिए नहीं सही, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं सही, तो आपको जब वो अगर उसको लेके कोई लीडर फ्रंट पे आके आपके मुल्क को, आपके लोगों को डिफेंड करेगा कि भाई नहीं, नो, दिस इज़ द लाइन, ये बाउंड्री है, इसको नहीं मैं क्रॉस कर सकता, तो यू विल फील वेरी प्राउड उस टाइम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा मौका कभी नहीं मिला। तो आई अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस। आई विश कि पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी सी इतनी अहलियत आ जाए कि वो इस तरह का कुछ कभी कर सके। अभी तक के लिए प्रोग्राम में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।